अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट साइदा बेल्ट और ये है बी बलोच एकेडमी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एवोल्यूशनरी एंड जेनेटिक बेसिक ऑफ बिहेवियर्स हैं। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हम लोग इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। वो ये हैं कि द ब्रेन बिहेवियर रिलेशनशिप फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम, the concept of theory of evolution and its developmental process, evolution of the Homo sapiens, and understand brain development and behavior changing. Where is the genetic programming of behavior, if any, and what are the similarities and differences between species, progenies, and of higher order animals, and including Homo sapiens. तो इसमें हम लोग अपना फर्स्ट जो है वो उसको स्टार्ट करते हैं, एवोल्यूशन एंड जेनेटिक बेसिक ऑफ बिहेवियर के। हम लोग अगर देखते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को, अगर आप लोग कहीं इंटर्नशिप की हो या फिर आप लोग केसेस भी देख रहे होते हैं तो हम लोग बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग कह रहे होते हैं कि ये जेनेटिकली जो हैं वो आ रही हैं। तो इसी तरह हमारा बिहेवियर्स भी कुछ होते हैं वो जीन से रिलेटेड जो है ना हमारे अंदर आ रहे होते हैं। This lecture would take the student through evolution of the brain, evolution of the mammalian species, the evolution of the man, links with brain developmental classification on the phylogenetic scales and similarities across the phylogenetic scale, developmental of the concept of the evolution, the Lamarckian adaptation, and how genes transmission take place, the double helix version and Crick model of the component of the genetic material and process of the transmission। तो मेरी आप सबसे उम्मीद है कि आप लोग अगर इंटरेस्ट लेकर इसको करेंगे तो आप आज बहुत कुछ सीखेंगे इस लेक्चर में। जिन लोगों को ऑलरेडी इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो उनके लिए एक बेस्ट लेक्चर जाएगा। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि हम लोग देखते हैं कि ट्रांसमिशन प्रोसेस कैसे चल रहा होता है। also the nature nurture debate with biologists and sociologists based on the Darwin evolution of the experiment। men like define men जो होते हैं define in biological term as Homo sapiens is comparatively newly evolved species with a biological presence of not more than 50,000 years। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आई जिसको हम लोग अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि बहुत सी टर्म्स जो हैं वो हम बायोलॉजी के भी यूज़ करेंगे, न्यूरो के भी यूज़ करेंगे, तो इसके लिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना। देयर आर सेवरल डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द होमो सेपियन, लाइक फर्स्ट जो है इसके द ओनली एनिमल विद एन अपराइट वॉक एंड ट्रू bipedalism। This is an extremely complex development as it needs change in the pelvic bones, the vertebral column, the cranium placement on the top of the vertebral column and visual system, etc. Man can over long distance without losing stamina or stand to hunt। नेक्स्ट जो हमारे पास है जो कि इसको दूसरी स्पेशल से अलग करते हैं, लैंग्वेज इज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम। इट इज़ मोर लर्न, मोर रिफाइंड कम्युनिकेशन वेयर कम्बिनेशन ऑफ द साउंड एंड intonation are used in sophisticated system। also culture and tribes have their own languages। humans have a specialized cortical area of language। तो जाहिर सी बात है जब हम लोग बात कर हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की कि हम लोग एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उनके मेरा ख्याल है कि आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस की आंसर जहां मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। Specialized hunter-gatherer rules of differentiating according to biological functions for male, female. The female have greater responsibility of looking after the offspring and stay with the young while males foraged। Domestications of other animals' specialized ability to benefit his survival, like camel, horses, cows, dogs, and chicken। next है highly evolved and complex societies kills all species without biological benefit, warfare and murder in other animal species specific survival purpose। तो ये बेसिक हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जिसकी बेस के ऊपर हम लोग कह सकते हैं कि एक इंसान जो है वो जानवर से
किस तरह डिफरेंस है और उसकी क्या क्या नीड्स हैं और उसके कौन से फंक्शंस हैं जो कि उसके अपने लिए हैं और वो एनिमल से डिफरेंट है। क्योंकि देखें अगर तो वो भी लिविंग एनिमल है, हम भी लिविंग है, और इसमें पर्पस जो होती हैं, हमारे जो बेनिफिट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और इसी वजह से हमारे फंक्शंस भी डिफरेंट होते हैं। लेकिन एनिमल्स में, और जैसे कि हमने लैंग्वेज में बात की कि हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हुआ है, कॉर्टिकल एरिया जो हमारा जो लैंग्वेज वाला है, तो उसकी वजह से भी, और उसके अलावा हमारे जो ब्रेन के बाकी हिस्से भी हैं उनकी वजह से भी जो फंक्शन मोर फंक्शन है और उसको हम लोग यूज़ भी कर रहे हैं, उसकी वजह से हम लोग उनसे डिफरेंट। हाईली एवेलेबल abstract thinking like ascertaining tools painting in primitive caves. However, Homo sapiens is similar to other biological species as can see through the taxonomic classification. अब taxonomic classification क्या है हमारे पास, उसको ज़रा देख लेते हैं। All animal in the animal kingdom categorized into this classification which categorize animal from general to specific. For example, on Homo sapiens we can see how these classification work. नंबर 1 पे हम किंगडम देखते हैं, एनिमेलिया देखते हैं, मोस्ट जनरल ऑल एनिमल ऑफ द फेस ऑफ द अर्थ, पैलियम कॉर्डेटा इसको बोलते हैं, सब फैलियम वर्टिब्रेटा इसे बोलते हैं, वर्टिब्रेट कॉलम जिसे कहते हैं, क्लास मैमलिया। तो ये हमारे पास एक उसकी प्रोफाइल है, ठीक है। तो इस प्रोफाइल हम लोग इसी तरह ही बनाते हैं। आप लोगों ने अगर मैट्रिक में या फिसी में बायो पढ़ी हो तो उसमें भी हम लोग जब इनकी प्रोफाइल पढ़ा करते थे तो वो भी इसी तरह ही हम लोग इसी बेसिस के ऊपर ही यही प्रोफाइल होती थी। इसी वजह से हम लोग बता रहे होते थे कि ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं, और ये क्लासेस इसी वजह से बनाई गई हैं ताकि एक जैसे जितने भी एनिमल्स हैं उनको एक ही तरीके से ट्रीट किया जाए। स्पीशीज है बेसिक टू क्लासीफाइंग एनिमल यूजुअली क्लियर एंड अपैरेंट डिफरेंसेस बिटवीन स्पीशीज। फिजिकल स्केल है स्केल ऑर्डर टू टर्म इन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक स्पीशीज स्पेसिफिक जो है वो डिफरेंस इन द अपीयरेंस शेप एंड फॉर्म। हॉर्स डंकी लाइक ज़ेब्रा कमिंग टू द सेम फैमिली एक्वास बट डिफरेंट स्पीशीज। ऑल थ्री आर herbivores and similar in behavior and appearance, yet there are differences. A horse may kick like a donkey but is more territorial. तो ये चीज़ें हैं, हम लोग इसी क्लास में जब बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वो वर्टिब्रेट एंड बियर देयर यंग एंड कॉल देम लाइक ह्यूमन बिलोंग टू दिस कैटेगरी। और फिर जब हम लोग देखते हैं वर्टे फर्ज हंट फ्लैश वर्टी वेजिटेबल ईटिंग, तो ये डिफरेंट हमारे पास क्लासिफिकेशन है, डिफरेंट हमारे पास चीज़ें हैं जिसकी बेस के ऊपर हम लोग देखते हैं कि कौन सा एनिमल या कौन सा ह्यूमन, या अगर हम लोग ह्यूमन की भी बात करते हैं तो हम लोगों ने जो बिहेवियर्स की एक लिस्ट बनाई होती है या थिंकिंग का एक पैटर्न बनाया जाता है, तो उसमें हम लोग उसमें हम लोगों ने अपनी एक लिस्ट बनाई होती है जिसमें हम लोग देख रहे होते हैं कि बिहेवियर ये है, उसकी एज ये है, जैसा कि हम लोग डेमोग्राफिक फॉर्म बनाते हैं ना, तो उसमें हम लोग एज देख रहे होते हैं, एजुकेशन देख रहे होते हैं, देन हम लोग उसका लाइफस्टाइल देख रहे होते हैं। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने अपनी जो है स्पेसिफिक की होती हैं कि ओके ठीक है, अगर ये चीज़ें ये रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हैं तो उसकी क्लासिफिकेशन ये होगी, उसका बिहेवियर ऐसा होगा, उसकी थिंकिंग ऐसी होगी। लेकिन अगर वो उनमें से डिफरेंस है तो हम लोग वो भी चीज़ देखते हैं कि उनका अगर दूसरी स्पीशीज़ के साथ बिहेवियर सेम हो रहा है तो उसकी भी क्या वजह है। एवोल्यूशन ऑफ द एवोल्यूशनरी थ्योरीज जो हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास थ्योरीज कौन कौन सी हैं। लिनेस की थ्योरी बिलीव दैट एनिमल वर क्रिएटेड एज वन एक्ट ऑफ क्रिएशंस एंड दैट स्पेसिफिक्स एंड द अनचेंजिंग वेरिएशन विद इन स्पीशीज पॉसिबल, हाउएवर ईच स्पीशीज इंडिपेंडेंट इन इट्स क्रिएशन। कॉमेडी जॉर्ज कहते हैं कि degeneration one species become another concept of change. Degeneration of the monkey into the man, effect of environment, forces of migration, environmental variations and struggle for existence introduce concept used by Darwin later.
लेमार्क क्या कहते हैं कि 1744 से 1829 उन्होंने बुक लिखी जो कि फिलॉसफी जोलॉजी के नाम से फेमस हुई. प्रेजेंटिंग हिज व्यू द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसमिशन गिवन बाय हिम वाज द एनिमल आर इन constant state of loss, constantly being perfected, and the direction of the change is toward higher form. Lamarckian charges gives a ladder of the life where animal move upward to higher forms and dead material return to regenerate. Changing or fixity of the species was elaborated for the first time, and that the environmental pressure bring about small heritable changing organ grow and shrink from use. The concept of use and disuse was also given by him, जो कि हम लोग मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं. तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमें लेमार्क ने दिया था. लिजिंको का कहना है कि गिव हिज थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक वेयर ही प्रपोज्ड दैट इफ देयर were some changings made in the one generation, they would be passed on to next generation. डार्विन ये बहुत फेमस थेरीज थी हमारे साथ. ट्रेवल Galapagos Island on the HMS Beggars. His many famous voyages over 22 years were actually very well documented. Evidence of the animal species he saw on those islands, his meticulous observation and noted led him to see some patterns and similarities and the differences in the appearance, behavior and other patterns. Wrote the book Origin of Species. On the basis of the documentation, the conclusion drawn are, जो उन्होंने कंक्लूजन बताई थी वो हमारे पास मौजूद है. 3 कंक्लूजन थी. देयर आर डाइवर्सिटी एंड वेरिएशन इन द genetic composition of the population and his private the rough shape at that natural selection work on. And next is organism vary could be due to mutations or other mechanism of genetic variability, and this variation is then inherited. थर्ड जो हमारे पास उन्होंने कहा था नेचर ओवर प्रोडक्टिव टेंडेंसीज बट नेचुरल टेंडेंसी टू मेंटेन अ कांस्टेंट पॉपुलेशन. उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा. और इसके अलावा जो है इसमें बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमने पढ़ी. थेरीज के बारे में पढ़ा कि किसकी क्या थेरीज रही, किसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा इससे रिलेटेड. और रिसर्च के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने पीछे से अगर हम लोग देखें, और उसके बाद हमने प्रोफाइल के बारे में पढ़ा. तो उम्मीद है कि आपके लिए लेक्चर जो है वो पहले के निस्बत और ज़्यादा आसान हो गया होगा. अल्लाह हाफ़िज़.